Okay. So they are saying that a number when divided by 7 1 by 6 gives 1 5 by 7 as a quotient. Find the number, right? अब Yes, जरा sir. एक बात दिमाग में सोचो, वो एक नंबर है x, क्या है? X. x. इसको हम डिवाइड कर देते हैं 7 1 by 6 से, करेक्ट? जी. तो एक बार तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 1 5 by 7. 7. सिंपल सी बात, आप एक बात बताओ, 10 डिवाइड बाय 2 करते हो, क्या लिखते हो आप? 10 डिवाइड बाय 2 विल गिव यू हाउ मच? Sir, 5. आप ऐसे ही लिखते हो ना कि 10 कोई एक नंबर था जिसको 2 से डिवाइड दिया तो 5 एज अ क्वोशंट मिल गया हमें, राइट? Yes, sir. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. द 10 Okay. इज अ नंबर which is divided by the 2, so it gives you 5 as a quotient. So you can Yes. write in this way, am I correct? Yes, sir. Similarly, a number which I don't know, so I will take it what? X. X divided by, so I have just put it here, right? Yes, sir. Gives me this one as a quotient, so I put it in this side. Any problem? No, sir. अच्छी बात है. जरा इसको सॉल्व करो अब. x ये कितना हो जाएगा? 7 1 by Sir, 6 43 by 6 हो जाएगा. जी. And this will become how much? 7.12 12 by 7 हो जाएगा. Yes, sir. अच्छा, अब आपको मालूम होना चाहिए कि जब ऐसा होता है, ये नंबर डिवीजन में है ना, Yes, sir. तो डिवीजन में है और ये नंबर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डू यू नो दैट? So multiplication. गुड. राइट में जाता है तो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन Multiplication. मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाता है, करेक्ट? जी. So it will become in the multiplication, right? Yes, sir. अब आप इसको सॉल्व करो जरा. नाउ ये मल्टीप्लाई हो गया. अब ये मल्टीप्लिकेशन के सारे रूल्स लगेंगे इसमें. जी. So 6 2 जा 12. और कोई नंबर कैंसिल है क्या? पॉसिबल है क्या? Sir, 7 ones are. 7 से 43 नहीं जाएगा, Oh yeah, yes, sir. राइट? 742. Yes, sir. चेक इट. तो क्या करोगे आप? नहीं पॉसिबल है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे. जी. डू इट. डन. 1 minute, sir. Sir, 86 by 7. 86 with 7. Check the answer. Check the answer from the book. Sir, it says 12 2 by 7. 12. 2 by 7. Right. Okay. 12 2 by 7 is the correct answer. Okay. Fine. That's great. Okay. 12 कितना बोला? Sir, 12 2 by 7. 12 2 by 7. एक सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ. 12 into 7. ठीक है ना? आप ये जो 86 by 7 है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो. जी. So here you are getting, I will write it down here. You are getting 86 by 7. So you can write it down this one what? Just divide करो. मैंने सिखाया था ना कन्वर्ट करने के लिए. जी. So 1 जा, so 7 आ जाएगा. 1 6 यहाँ आ गया. 7 2 जा 14. So 2 is what? 2 is the remainder, right? Yes, sir. So 86 by 7 we can write 12 2 by 7. 14 7, sir. क्लियर है? जी सर. कोई प्रॉब्लम? नो सर. कोई परेशानी इसमें? नहीं सर. नहीं है. ओके. नहीं. आपने ये किया है नीचे के वर्कआउट? जी. वर्कआउट भी कंप्लीट कर लिया? जी. वर्कआउट सर
Yes, tell me. Workout यानी कि आपके the आपके बुक division. नहीं, डिवीजन नहीं, आपके बुक में एक्सरसाइज 2.4 के नीचे वर्कआउट है दिया हुआ. हैव यू सीन दैट? Yes sir. वो आपने सॉल्व किया है? No sir. ओके, कोई बात नहीं, चलो हम वो देखते हैं अभी. ठीक है, Yes sir. नो इशू, वी विल सी राइट नाउ. Sir, I sent exercise 2.3 and 2.4 sir. Did you get it? Yes, 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 I have received. Okay. Okay, yeah, I have received. Chalo, can you see the question what they are saying? You can also read in your book. You आप क्योंकि book का image थोड़ा यहाँ खराब है, so take out your जी. book and उसमें page number 26. Can you see that? Yeah. Page number 26, 1C. Can you see the question 1C? Yes sir. Okay, Yes sir. so you can see from there. Okay, so they says Yeah. that the price of each ticket is 51/2 at a movie show, right? Yes sir. Total ticket was rupees, how much is this? 4,000 or 4 point? Sir, 4,020. 4,000. Okay, yeah, it's 4,242. not visible to me also. Okay, 4,242 were sold. Okay, rupees they are saying. Sold Yeah. for matinee show. The number of people who came for the matinee show was, okay, total is this, cost of one ticket is this. What do you think? You should divide it or what? Sir, divide it, sir. You have to divide it, correct? Yes, So sir. you need to divide 4,242 divide by 51/2. Am I right? Yes, sir. So 4,242. Okay, wait. First, you need to convert in the improper fraction, right? Yes, sir. So tell me, improper fraction will be how much here? Sir, 101/2. 101/2. That's great. Then what you will do? Tell me. Sir, 4,242 into Into 2/101. good 2/101. अब एक काम करो, 4,242 को 101 से डायरेक्ट डिवाइड मार दो. जी. So I will also help you here because this is a big number for you. So 101. So I can think I can take it by 4, right? 4. Yes, तो sir. 4 से जाएगा तो क्या हो जाएगा? 404 हो जाएगा. 404. Yes, sir. So 0 2 cancel and 2 will come down. I can take it 2, right? Yes, So sir. this will come 2 cancel, right? Yeah. So I can see it can be cancelled by 42. So 42 times 2 gives me how much? Sir, 84. 84 is the answer. So which is the correct one? 84 is the correct answer. Yes, Clear? sir. Yes. Sir, Tell me. sir, why did we do 42 into 2? Oh, Oh, because 2 was remaining. Okay, sir. yes. And sir, why did we do direct division, sir? Okay, Because, direct division. Just think here. yeah. I will give you example. You have total 5 friends. How many friends you have? 5. 5 friends. Just take a small example I'm taking because they have given a big example. So I'm just taking why you have to divide. Suppose you have 5 friends, right? Yes, sir. Each friend wants 2 ice cream. How many ice cream? 2. 2 ice cream, correct? Yeah. And you have how many friends? Sir, 5. 5. So total how many ice cream do you need? Sir, 5. Oh, each friend wants 2 ice cream. Yes, sir. And you have 5 friends. Total how many ice cream do you need? Sir, 10. 10 ice creams, right? Yes, sir. Because 5 friends are there, each friend need 2 ice creams, so you have to get how much? 2. 10. पहला ले गया, फिर दूसरा बंदा ले गया, तीसरा फ्रेंड, चौथा फ्रेंड, पांचवा फ्रेंड, सबको ऐड करो. जी. 10 हो गए. 10. तो हम इसको जी, लिख सकते हैं 2 times 5 is 10. Yes. अब इसी का रिवर्स बात सुनो. मेरे पास 10 आइसक्रीम है. कितने आइसक्रीम्स हैं? 10. 10 आइसक्रीम्स हैं, right? जी. Each friend will get 2 ice creams. Each friend will get 2 ice creams. 2 ice creams. तो अभी यहाँ मल्टीप्लाई किया था तो 10 है, मतलब टोटल मेरे पास है
और ईच फ्रेंड में डिवाइड करना है, राइट? जी। तो ईच फ्रेंड विल गेट हाउ मच? 2 2 आइसक्रीम। आइसक्रीम। टोटल मेरे पास कितने फ्रेंड होने चाहिए कि 10 आइसक्रीम खत्म हो जाए? 5। 5 होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? वी विल गिव द डिवीजन। यस सर। मतलब अगर हमें कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट कर, सिंपल सी बात, कोई चीज हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जी। यहाँ पर हम 10 आइसक्रीम्स क्या कर रहे हैं? वी आर डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूटिंग। या। टोटल था, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दैट मीन्स वी हैव टू डू डिवाइड, करेक्ट? जी। और हम किसी चीज को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट मतलब एक के पास था, टोटल कितने थे, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। क्लियर है? यस सर। याद रखना, अगर आपके पास एग्जांपल लो 100 रुपीज है, कितना रुपीज है? 100 रुपीज। एंड सारे फ्रेंड्स के पास 100 है, राइट? जी। सभी फ्रेंड्स, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सभी के पास 100 रुपीज है। सो जी यू हैव टोटल 5 फ्रेंड्स, तो कितने रुपए हो गए आपके लोगों के पास? सर 500। आपने क्या किया? मल्टीप्लाई कर लिया 5 into 100 से। जी सर। तो आपने कलेक्शन किया सभी को। कलेक्शन मतलब मल्टीप्लाई कर लिया, राइट? जी। अब आप मेरी बात सुनो। जी। टोटल सारे फ्रेंड्स को मिला के, टोटल सारे फ्रेंड्स को मिला के आप लोगों के पास 1000 रुपीज थे। कितने रुपीज थे? 1000। एंड टोटल फ्रेंड्स वेयर 5 फ्रेंड्स। कितने फ्रेंड्स थे आप लोग? 5 फ्रेंड। तो ईच फ्रेंड के पास कितना रुपया होगा? सर 200। आपने क्या, सिंपल, ये लॉजिकल है कि आप तो ये इस तरह करते हो ना, जब पार्टी पिकनिक कभी गए, बच्चे क्या जी। करते हैं? कलेक्ट करते हैं, राइट? जी। जी। तो बस टोटल पैसा 1000 रुपीज है, हम लोग 5 फ्रेंड्स हैं, चलो चलते हैं यहाँ खाने के लिए, ऐसे करते हैं, राइट? जी। तो उसमें क्या है, सबने कलेक्शन किया, राइट? जी। अभी 1000 रुपीज है बच गए और मुझे 5 फ्रेंड्स में डिवाइड करना है, तो जी। कितना रुपया ईच को जाएगा? तो हम क्या करते हैं? हम डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो राइट? यस सर। तो या। बस याद रखना ये कि अगर कलेक्शन कर रहे हो आप, जी। तो मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई। और अगर कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करना है, ईच ऑफ देम निकालना है, तो आप डिवाइड करोगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। इन But एग्जाम्पल, यस। sir, so can you go to the previous one? Which one? This one? So will you show the ice cream? Okay. Yes sir. No sir, Yeah. the ice cream one sir. Okay. Yeah, हाँ. yes sir. Sir, in this, should we do actual division or the same division, the multiplication rules? Like, Same multiplication rule. okay, sir. So, हम so like 10 by 2 divided by, I mean, into 1 by 5. why यहाँ पे हम डिवाइड कहाँ कर रहे हैं? यहाँ तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इस जगह हम। नहीं सर, डिस्ट्रीब्यूशन में 10 आइसक्रीम। So 10 आइसक्रीम्स है, तो हम जस्ट ये कर रहे हैं ना। कैन यू सी दैट? यस सर। सो ये So कितना 10 हो by जाएगा? 2. Sir, 1 by 5. 2, Yes sir. राइट? सो ये हो जाएगा कैंसिल। जी। 5 आ गया आंसर। यस सर। इट्स सेम थिंग, हम कोई रूल बदल नहीं रहे, सेम रूल है, जी। ठीक है? Yeah. Okay. Okay. गॉट इट? No sir, because I thought like in the previous one where we did 4242 divided by 101, we directly divided it. So नो नो नो, वे आई विल शो यू, आई विल शो यू। हमने डायरेक्ट कहाँ किया? देखो, हमने लिखा था यहाँ पे 50, लिखा था यहाँ, देखो 101 by 2 लिखा था, राइट? yes एंड sir. देन वी हैव यूज्ड द सेम रूल, मल्टीप्लाई किया तो ये रिवर्स हो गया इन रेसिप्रोकल। Yeah. No, but sir, why did we divide 4242 and 101? ओह, हाउ यू विल कैंसिल इट? Okay. आप 10 times 1 by 2 को कैंसिल कर लेते हो ना आसानी से। इसको कैसे So करते this हैं? is big number, that's why we दैट इज द divided it. रीजन, बिग नंबर था। Okay. और दूसरा चीज ये था कि 101 किसी दूसरे टेबल में नहीं आता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 तक के टेबल में 101 इज अ प्राइम नंबर, Yes sir. किसी दूसरे टेबल में नहीं आता है। तो 101 से डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ता है हमें इस केस में। दैट इज द रीजन। और बड़ा नंबर था, इसीलिए मैं आपको डिवाइड करके दिखा। 101 का टेबल याद है क्या आपको? नहीं सर। फिर टेबल याद होता तो मुझे डिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे भी जी। टेबल 101 का नहीं याद है।
इसलिए मैं डिवाइड करके, हम क्या करते हैं, हमें टेबल नहीं आता तो हम डिवाइड करके यूज कर लेते हैं, राइट? Yes, sir. यस, ओके फाइन, Okay, okay, sir. ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अभी। जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये तो आसानी से कर लोगे आप। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, गिव मी अ सेकंड। दिस इज द सेम एक्सरसाइज, Yeah. 7 नंबर, 7 नंबर प्रॉब्लम। आप अगर नहीं क्लियर दिख रहा हो तो वहां पढ़ सकते हो। रीड द प्रॉब्लम प्लीज। Sir. नहीं, आप अपने बुक से पढ़ो, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, आगे एक पेज ले लो। Okay, okay, sir. Found it. 7 नंबर क्वेश्चन है, कैन यू सी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, पढ़ो बुक से। Suresh's mother lets him read storybooks 1 by 2 hours per day during the summer vacation. He took 3 days to finish a book. How many hours did he take to read the book? ओके, एक चीज मैं बताऊं, जब भी कभी मैथ्स बनाओ ना, तो ऐसा सोच के बनाना कि मेरे ऊपर ये वर्ड प्रॉब्लम में, खासकर वर्ड प्रॉब्लम्स में, नॉर्मल मैथ्स तो रूल्स रेगुलेशन में आप चला लोगे, लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम बनाओ तो ऐसा फील करो कि क्वेश्चन किसी दूसरे के बारे में नहीं है, क्वेश्चन आपके बारे में है, मेरे बारे में है, ठीक है? मतलब अपने बारे में सोच के अगर करोगे ना आप, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। अभी देखो इसमें क्या कहता है कि सुरेश मदर लेट हिम रीड स्टोरी बुक्स 3.5 आवर पर डे। अब सिंपल सी बात मैं कहता हूं कि सपोज आपकी मम्मी कहती है कि आपको इतने घंटे रोज पढ़ाई करनी है जी, पर डे, राइट? पर डे इतने घंटे तो पढ़ाई करनी ही करनी है, राइट? Yes, sir. अच्छा, आपने जी 3 दिन पढ़ाई कर ली, आपने कितने दिन पढ़ाई की? 3 days, 3 days you have studied, तो आपने how many hours did he take to read the book, correct? Yes, तो sir. सिंपल सी बात है, आप सोचो कि एक बुक है, उसको खत्म करना है, 3 दिन लग गए खत्म करने में, और पर डे आपने कितने आवर्स दिए उस बुक को? 3.5। तो क्या करना चाहिए? What you have to do? You have to divide, you have to multiply, you have to add, you have to subtract. Sir, I think we need to multiply. Why multiply? Sir, because we need to know how many hours did he study in 3 days. Right, correct. But in this, it's given how many hours he studies in 1 day. Right, correct. So we need to multiply it Correct. to know how many days. Correct. How he many? studies. No, how many I mean, hours? how many hours? Sorry, Right. hours. एक दिन का पता है, तो 3 दिन में कितने होंगे वो निकालना है। सिंपल सी बात है, लॉजिकल, कि 1 डे का मुझे कैलकुलेशन मालूम है और 3 डेज में कितने होंगे वो निकालना है। सो वी विल जस्ट मल्टीप्लाई इट, राइट? सिंपल सी बात, अगर एक दिन में आपके पास 100 रुपीज आते हैं, तो 5 डेज में कितने रुपीज आएंगे? यू विल मल्टीप्लाई। सिंपल, लॉजिकल, ठीक है, गुड। तो मल्टीप्लाई करके मुझे दिखाओ कैसे करोगे। ओके सर, टेल मी द आंसर, फाइनल आंसर। So 3, 1 into 2 times 3. 3. So this becomes how much? Sir, 7 by 2. 7 by 2 times 3. It becomes how much? Sir, 21 by 2. 21 by 2 hours. Correct? Yes, sir. अब इसी को अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, then 10 1 by 2. Yes, sir. Okay, check the answer. So from the textbook? Yeah, from the textbook. Yeah. Sir, it says 49 by 2. 49 by 2? It says 7. हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 वर्कआउट में। सर इधर 49 by 2 लिखा है। Confirm? Yes, sir. But sir, there are like many questions in 7.
नहीं, आप कहीं गलत देख रहे होगे। चैप्टर देखो ना, चैप्टर 2 में वर्कआउट जो है। जी सर वही देख रहा हूँ सर, वर्कआउट में। वर्कआउट में जी। क्वेश्चन 7 देख रहे हो आप? जी सर। नहीं, 49/2 कैसे हो जाएगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। इतना छोटा कैलकुलेशन है, गलती होने की कोई चांस नहीं है। जी। माइट बी सम एरर होगा वहाँ। जी सर। Our answer is not wrong. 49/2 या is not possible. या अब मार्क कर लो, okay, and you can जी। inform your teacher later ओके। कि इसका आंसर ये आया है। But our answer is 100% correct. There is no issue in that. या तो आप या आंसर कुछ और देख रहे हो, that is the thing, या फिर बुक ने मिसप्रिंट कर दिया है। या मे बी सर। ओके, कोई बात नहीं, चलो रहने दो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। 8। ये 7 हो गया, राइट? जी सर। नोट कर लिया सारा आपने? जी जी। एक मिनट सर। 7 नोट कर लो, और उससे ऊपर पहले हमने बनाया है ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, नहीं 1C। 1C बनाया है, 1C, ये नोट कर लो। 1 minute sir, can I know this one C? हाँ, 1C नोट करो। यस, टेक योर टाइम। G sir, done. ओके, फाइन। Sir, can you go to 7? यस यस यस, गिव मी अ मोमेंट। कहाँ मैंने बनाया वो? एक, जस्ट अ सेकंड। Yes. यस, यू कैन टेक दिस वन। Yeah. Yes sir, done. ओके, गिव मी अ सेकंड। Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन आपने 8 नंबर आप खुद से अभी ट्राई करो। G sir. यस, पहले आप ट्राई करो, नहीं होगा आई विल टेल यू। Okay.
Sir. Yes. Yes, sir. I'm confused, sir, in the eighth one. Read the problem. Yes, there are 45 people living in a building. Okay. Out of these, 1 by 3 are men, 1 by 5 are women, and the rest Mm-hmm. are children. Find the number of men, women, children, men, women, and children living in the building. Okay. टोटल 45 पीपल रह रहे थे. जी. चलो, तो हम एक घर बनाते हैं जिसमें टोटल जो है 45 लोग हैं. कोई दिक्कत? नहीं सर. ओके. आउट ऑफ दीज 1/3 are men, Yeah. 1/5 are women, and rest are children, right? Children. Yes, sir. So 1/3 are men, 1/5 are women, and you don't know the children, so can you take it X? Yes, sir. हमको नहीं पता कितने बच्चे हैं वहां, तो हम X मान लें. जी. कोई प्रॉब्लम नहीं सर. अब आपको पता है कि अगर X निकालना है तो ये दोनों नंबर राइट में चले जाएंगे. जी. हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, X is equals to 45 minus 1/3 minus 1/5. Can we write that? Yes, sir. मालूम है नहीं कि राइट में जाता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है. जी जी. ओके. अब एक काम करो, अब आप एक काम ये करो कि आपको मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया था या नहीं सिखाया था? सिखाया ना? आपने सिखाया जी. तो यहाँ पे एलसीएम क्या, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होगा? कुछ नहीं दिया है तो 1 लिखेंगे. अब क्या करेंगे? तो आपके पास क्या नंबर हो गए? यू हैव अ नंबर 45 1 minus 1/3 minus 1/5. तो आपको क्या करना है? 45/1 से 1/3 and 1/5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है. जी. तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? चेक द एलसीएम. एलसीएम निकालो. बहुत सिंपल है, 15 हो जाएगा. 135 का एलसीएम कितना होगा? जी जी 15. तो चलो हम एक काम कर, हाँ सॉरी मैंने ये लाइन पहले लिख दिया. 15 हो जाएगा, राइट? यस. तो आपको 45/1 को भी 15 बनाना है. जी. So how you will make it? You will multiply by 15. 15, yes sir. Right? Yes sir. एक सेकंड रुक जाना. एक मिनट. आई थिंक मैंने क्वेश्चन को ओहो. Give me a second. 45 people living in the building. मैंने क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर लिया, सॉरी. मैंने जल्दी में क्वेश्चन गलत पढ़ लिया. एक सेकेंड, अभी ध्यान आया मुझे इसको. ओह सॉरी, आई एम वेरी सॉरी. मैंने क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर लिया था. टोटल 45 लोग हैं, राइट? आउट ऑफ दीज यहाँ बोला है स्टेटमेंट में. क्या बोला है? आउट ऑफ दीज मतलब 45 में से men are, how many are the men? 1/3. 1/3 of what? 45. Can you calculate it? Yes, sir. 15. जस्ट मल्टीप्लाई तो करना है हमें. जी 315. ओके. कितने वुमेन हैं? 1/5 are women, मतलब 1/5 of 45 of 45 मतलब इतने में से, राइट? यस सर. ये मुझे कैसे पता चला? मैंने गलत एक्चुअली इंटरप्रेट किया. यहाँ पर आउट ऑफ दीज लिखा हुआ है, राइट? मतलब टोटल 45 हैं. 45 को 3 कैटेगरी में बांटा, मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस में. तो मेन हो गए 1/3 आउट ऑफ 45, राइट? वुमेन हो गया 1/5 ऑफ 45, राइट? ओके, करो इसको, करो. कितना आएगा? 9.
टोटल कितने हो गए मैन वुमेन, ऐड कर दो। तो 24 हो गए। अब चिल्ड्रन चाहिए, क्या चाहिए? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, तो टोटल कितने थे? 45। मैन वुमेन मिलाकर कितने हो गए? सर 21 24। 24 तो जी 45 में से मैन एंड वुमेन को माइनस कर देंगे तो हमें जी बच्चे मिल जाएंगे। कितने बच्चे हैं वहां? सर 21 चेक द आंसर। This question is, I think, what is the question number? 8th one sir. 8th one. Yes, check it. Sir, I think there is some mistake, sir. It says 7th question, but below, but after that is 6th question. क्या क्या क्या? It says 7B, but below that it's 6A. 7B कहाँ है? 7B तो है ही नहीं हमारे पास। जी वही तो सर वर्कआउट में लाइक आप कहीं और देख रहे हो फिर। 7B तो हमारे एक्सरसाइज में है ही नहीं। आप कहाँ देख रहे हो? 2.3? नहीं सर वर्कआउट में देख रहा हूँ। तो वर्कआउट में 7B है ही नहीं, तो 7B आएगा कहाँ से? क्वेश्चन ही नहीं है। जी वही तो सर। आप वर्कआउट किसी और एक्सरसाइज का तो नहीं देख रहे हो? चेक करो, चेक करो ऊपर। एक्सरसाइज 2 ही देख रहे हो ना, चैप्टर नंबर 2 ही देख रहे हो ना आप? जी जी फ्रैक्शंस। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है फ्रैक्शन का देख रहे हो? 7B को जब क्वेश्चन है ही नहीं तो 7B का आंसर कहाँ से आ जाएगा? वही तो सर मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि इसमें कोई भी सेवेंथ क्वेश्चन नहीं है। 7th के बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आपके मैं आप ही के बुक से यूज कर रहा हूँ। यू कैन सी इन योर बुक। 1 आप minute सर। आप गलत आंसर की में ना गलत देख रहे होगे। थोड़ा अच्छे से देखो। सेम चैप्टर देख रहे हो ना आप? फ्रैक्शन चैप्टर ही। 1 minute sir. It's like first question, then second question, then third question, then fourth question, fifth question, and then it comes 7th question. 6 भी तो है। वही तो सर 6 तो नेक्स्ट में है। 7 के बाद 6 आता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जी सर सर should I show it to my यस ma'am like yeah यस यस। 1 minute sir. Hello sir. Yes, tell me. Yes, sir. Sir, I got it, sir. There was 7th one also. Okay, Sir, it was down, sir. I did a mistake. हाँ, Sorry, मैं sir. बोला था ना कि आप गलत देख रहे हो कहीं। जी हाँ, सर 7 का 7th क्या? का आंसर 10/1/2 एग्जैक्टली 7th देखो का वही है। आया हमारे पास, राइट? जी जी एंड 8 का क्या आंसर है? सर 15 men 9 women and 21 children. देखो यहाँ पे सब आ गए। जी men ना 15, women 9 एंड चिल्ड्रन 21, राइट? यस ओके, सो अब इसको नोट कर लो। हाँ, मैं बोला था ना गलत कहीं देख रहे होगे। होता है, कोई कोई बात नहीं, इट्स ओके।
And today I will send you one exercise to you. ठीक Okay. है? Yes, sir. Done, sir. Sir, 1 minute, sir. Can I just come? Please, Yes, just yes. 1 minute. Yeah, take your time, no problem. Hello, sir. Yes, can you hear Yeah. me? Yes, sir. I can hear you. Okay, that's great. Okay. Next question ले लो. जी 7 हो गया ना? जी सर जी. Okay, next question. Next question आप लो 9 number. Ninth one. Try to do it by yourself. Yes, sir. अभी आपके पास स्कूल तो आपके यहाँ ओपन नहीं है? नहीं सर, नॉट येट. तो पूरे दिन घर में क्या करते हैं? जी सर, मैं बस खेलता रहता हूँ और Okay. कुछ और स्टडीज करता हूँ Okay. किसी और सब्जेक्ट का. और जब जब आप जब आपकी क्लास होती है उसके बाद मैं एक्सरसाइज पूरा करता हूँ तब Okay. And एक्सरसाइज. what about your physics and chemistry and bio all? No sir, we don't have that yet. We just have science and हाँ, common फिर subjects. साइंस में ही आता है ना आपका जी मतलब. जी. तो अभी साइंस कैसे कर रहे हो आप? और science sir, I got my textbook for science. हम्म. And then recently when this e-learning was going on, the teacher used to teach, she taught like a few topics, so Oh, I'm okay. just revising the same topics. Okay, fine, fine. No issue. If you need help, you can tell me. Okay. Yeah, okay sir. We have very good teachers for all. Okay, even I teach Yeah. physics. I teach. Okay. Oh, साइंस okay. पोर्शन में 3 पोर्शन होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो. ओके. Oh, okay, okay. सो अगर कोई दिक्कत वैसी हो तो आप मुझे बताना. ठीक है? जी सर. चलो, तो अभी आपके पास ज्यादा वर्क नहीं है, सो आई विल शेयर द होमवर्क विद यू. Yeah, okay. So the thing is, sir, like I have problem only in math. Like the rest all नो इशू. subjects I can manage. या दैट्स ओके, दैट्स ओके. Do it fast, 9 number, Yes, sir. because I'm waiting.
Yes, sir. Done, sir. Hello? Yes. Yes, sir. Done. Yes, sir. What is the answer? Sir, I got 162 by 23 rupees. 160. Check the answer from the book. अगर सही किया हो तो बुक में आंसर मिल जाएगा. जी सर, it says 132 by 7 by 8. एक मिनट, आपका क्या आंसर आया? Sir, 162 by 23. 162 by 23. Yes, sir. अच्छा, 162 by 23. और बुक में आंसर क्या है? Sir, 232 7 by 8. नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है फिर तो. I have to do it in that case. आपने गड़बड़ कर दी है. No problem, होता है. Rishi went to a store to buy sugar, right? Yeah. Okay, the price list. Okay, तो आसान क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं. Okay, देखो यहाँ पे. Rishi went to a store buy sugar. The price list at the store shows that the cost of 1 kg of sugar is 40.5, right? Yeah. How much money should Rishika, okay, Rishika naam hai, not Rishi, Rishika pays if she want to buy this much kg? अब ये तो बहुत सिंपल है. सिंपल सी बात. अगर एक आइसक्रीम का प्राइस 10 रुपीज है, आपको 5 आइसक्रीम चाहिए, क्या करेंगे आप? Distribution. आपके पास one ice cream price is 10 rupees, right? Yes, sir. You need 5 ice cream, so how much you have to pay? Sir, 50. How you did? आपने multiply किया ना? Yes, sir. तो same collection. So 1 kg of price इतना है, इसको total 5 किया है, ऊपर 3/4 है ना? जी. हाँ, आप इनको ऋषिका को इतना kg शुगर चाहिए, right? जी. 1 kg का प्राइस बता रखा है 4.5. टोटल 5 के 3/4 kg चाहिए, तो you will do multiply. अभी so 40.5 times 5 3/4, correct? Yeah. So this becomes 81/2. और ये कितना हो जाएगा? 23/4. मुझे नहीं लगता कोई कैंसिल पॉसिबल है. नहीं सर. तो 81 times 23 कर दो. 81 times 232. So 1863 by 8 हो गया. Yes, sir. अब चलो, अब क्या करेंगे? उन्होंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है आंसर, राइट? जी. तो मिक्स्ड, देखो ये डिवीजन में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में चाहिए मुझे, करेक्ट? So 8 2 16, 2 is the remainder, 8 I think 24, 3 ja 24, 2 again. So what we can write? 8 2 ja 16. So कितना हो जाएगा? 3 यहाँ बचा, 4 3 7, right? So I can write 232 7/8. Is this the answer? Yes, sir. So look it into it. आपने क्या गड़बड़ी किया? सर मैंने डिवीजन लिया. क्यों डिवाइड कर दिया? 1 kg का प्राइस है ही, तो फिर डिवीजन का कोई चांस नहीं है, राइट? No, sir. But sir, is 5 3/4 is 5 3/4 is smaller, right, sir? Smaller कैसे है? Smaller than 40 and a half. नंबर पे मत जाओ. अच्छा, आप नंबर पे जा रहे हो. नंबर पे तो स्मॉलर है,
जी नंबर में एक बात बताओ जी कभी मार्केट में कुछ सामान खरीदते हैं आप? जी क्या खरीदा आपने? सर वेजिटेबल्स फ्रूट्स क्या प्राइस रहता है? और सर लाइक वन वेजिटेबल बी लाइक कोई एग्जांपल दे दो आप। हाँ, सर 20 रुपीज। तो आप 20 रुपीज में कितना लाते हो? एग्जांपल 1 kg। जी तो 20 बड़ा है या 1 नंबर बड़ा है? सर 20। 20। लेकिन 20 में आप 1 ही kg ला रहे हो ना। जी तो वैसे आप सोचोगे कि जी 20 में 20 बड़ा है, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। ऑब्वियसली द प्राइस विल बी द मोर, बिकॉज दिन प्रतिदिन प्राइस बढ़ती जा रही है, राइट? वो यस पहले सर का जमाना था कि आप 1 रुपया देते थे और आपको 10 kg चावल मिल जाता था, 10 kg आलू मिल जाता था, राइट? जी मैंने भी ये चीज नहीं देखी है। मीन्स जी मेरे टाइम से बहुत पहले 19, अब कब होगा आई डोंट नो, आई हैव आल्सो नॉट या सीन, राइट? या तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप प्राइस एंड अमाउंट मतलब वैल्यू, ठीक है, ओके उसको आप मत कंपेयर करो कि यहाँ पर 40 ज्यादा है, ये 5 कम है। ऑब्वियसली प्राइस इज मोर एज कंपेयर टू हाउ मच यू विल बाय। या ऐसा थोड़ी ना कि 40 है तो 20 रुपीज kg आलू दे रहा, तो आप 20 kg आलू खरीद के आ जाते हो। करते हो जी क्या ऐसा? नहीं सर नहीं करते ना हम ऐसा। जी ओके। नहीं सर मुझे लगा लाइक as as this number is bigger so we need to नहीं divide it. नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन। Yeah. नंबर बड़ा छोटे से क्या मतलब? यू हैव टू डू इट। ओके Okay. Okay. ओके ओके फाइन, दैट्स ग्रेट। ओके ठीक है, तो ये हो गया। वन मोर। अच्छा, मैं आपको एक, आप अपना होमवर्क नोट करो जरा। Okay. Yes sir. हाँ, एक सेकेंड। आपके पास फ्री टाइम है, आज पूरा बैठ के प्रैक्टिस करो एंड योर होमवर्क विल बी, एक सेकेंड बस मुझे ये लुक करने दो। हाँ जी, ये इधर है, ठीक है। हाँ, नोट करो एक्सरसाइज 2A। आपका बुक नहीं, मैं भेजूंगा, ठीक है? Okay. Okay. आई विल सेंड। उस पेज में एक्सरसाइज 2A है, ठीक है? 2A. Yes sir. 2A, उसमें लिखो आप क्वेश्चन 8 to 16। 8 to 16, 8 9 10 11 12। 2, 16. I Yes will sir. I will write down here. Exercise 2A, question 8 to question 16। 2 का मतलब है 9 10 11 12 सारे आएंगे, ठीक है? जी जी अच्छा, उसके बाद लिखो आप, नोट डाउन करो। क्या आ गया जी? एक्सरसाइज 2B, एक्सरसाइज Exercise 2B. 2B, question 4 to 15। The question 4 to question number 15। 1 2 15 right sir? Yes, 1 5 I have written on the board, you can see। Yes sir. Okay. Okay, Yes sir. उसका देखो एक्सरसाइज 2C, क्वेश्चन 4 to question 17। 2C. Question. Okay. Thank you. ओके, Yeah. तो टोटल लगभग लगभग इतने क्वेश्चंस आपके पास हैं, राइट? यू Yeah. हैव टू डू इट एज अ होमवर्क। मैं अभी जस्ट आपको गिव मी मोमेंट, आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ठीक है? जी आपकी जो मदर है उनके नंबर पे, जी ठीक? Yes आप वो sir. डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेना। क्या करोगे? Save. डाउनलोड करके सेव कर Save. लोगे, क्लियर है? जी जी यस। Sir, are you going to send it in Word format? Like,
नहीं, पीडीएफ फॉर्मेट है। Okay, okay. बुक है, दैट्स बुक आई एम सेंडिंग यू। ओके, Okay. द बुक आई एम सेंडिंग यू, उस बुक का एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जी, okay, हाँ, okay. इट्स फॉर योर प्रैक्टिस। अगर आपने ये कर लिया तो आप समझ लो पूरा चैप्टर डन हो गया, ठीक है। और ये सारा Yes, sir. करके आपको मुझे सेंड करना है। इज इट क्लियर? जी, yes, sir. यस, सो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू, यू कैन, ओके, ये जा रहा है अभी मेरी साइड से, ठीक है। इट विल Okay. टाइम। सो आपको जो मैंने होमवर्क अभी बताया है, जो जी, वर्ड प्रॉब्लम करने का तरीका सिखाया है, आप उसको जी. फॉलो करो एंड आई थिंक यू कैन डू इट, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अच्छा, दूसरी चीज, जो पीडीएफ मैंने भेजी है उसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं, तो अगर कहीं आपको डाउट हो कैसे करना है, क्या करना है, सो यू कैन Okay. सी द एग्जांपल्स आल्सो। और कभी Okay. दूसरी कुछ डाउट हो, सो आप तुरंत मुझे मैसेज करके पूछ लेना कि सर मुझे यहाँ डाउट हो रहा है, क्या करें, ठीक है। Okay, okay, यू sir. कैन मैसेज मी एनी टाइम, देयर इज नो प्रॉब्लम। Yeah, okay. ओके, Yeah, done, sir. Yeah. ओके, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे मंडे को एंड वी विल सी फर्दर। ओके, Yes, sir. Okay. ओके, बाय, टेक केयर, Okay, thank you, sir. Bye. बाय।